Hello everyone. In this lecture, I am going to solve last 10 problems of KBPY 2019 paper, and here is a view of 11th problem. Okay, in this problem we have to given a convex quadrilateral ABCD and P with the interior point of this quadrilateral and K element with the midpoints of sides AB, BC, CD, D respectively. And we have to given the area of these three quadrilaterals and we have to find out the area of quadrilateral PLCM. Okay, so first I am going to draw the figure. ABCD is a convex quadrilateral. Something like that. This is the point A, this is the point B, C and D. P be any interior point, take P somewhere here. Okay, and connect point P to all the vertices of this quadrilateral, this one. This is the point P. Okay, and we are given that K, L, M, N are the midpoints of AB. Midpoint of AB is K, midpoint of BC is L, midpoint of CD is KLM, and midpoint of AD is N, and this point is P. Okay, and now connect the point P with all the midpoints. This one is PK, PL, PM, and PN. Okay, what we are given, the area of quadrilateral PKAN is 25. Okay, and area of quadrilateral PLBK is 36 and area of quadrilateral PMDN is 41. Okay, now look at the triangle APB. Since K is the midpoint of side AB, this will imply PK is the median from P to side AB. And we know that the median bisect the triangle. Median actually divides triangle two parts of equal area. Therefore, we can say that area of triangle APK equal to area of triangle PKB. तो इस तरह से अपन कुछ सपोज कर सकते हैं, मीडियन अगर बाइसेक्ट करती है तो इस ट्राइंगल PAK के एरिया को अगर मैं x सपोज करूँ तो ये भी x बन जाएगा. सिमिलरली देखिए PL मीडियन बन जाएगा ट्राइंगल PLB का, तो अगर इस एरिया को y सपोज करें तो ये भी y. सिमिलरली ये z आ जाएगा और ये w. अब चलते फर्स्ट रिलेशन देते PKAN का एरिया w प्लस x है ना, और w प्लस एक्स कितना अमाउंट गिवन है 25. दिस द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. सेकंड क्वाड्रिलेटरल देखिए क्या PLB के दिस वन x प्लस y, ये सेकंड इंफॉर्मेशन है. x प्लस y इज 36 एंड थर्ड इक्वेशन है PMDN इज व्हाट z प्लस w और ये अमाउंट है अपने पास 41. ये थ्री इंफॉर्मेशन गिवन है. PLCM का एरिया निकालना. PLCM डायग्राम देखिए आप, राइट मोस्ट पार्ट दिख रहा होगा, तो y प्लस z निकालना आपको. विद द हेल्प ऑफ these three equations you have to find out the value of y plus z. तो y plus z देखो यहाँ से डायगोनली देखिए सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हम जनरेट कर सकते हैं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, तो मैंने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन भी ऐड किया जिससे y plus z पिक्चर में क्रिएट हो जाए और एट द सेम टाइम फर्स्ट इक्वेशन को सेपरेट कर दे जिससे एक्स्ट्रा जो x प्लस w है वो यहाँ से कैंसिल हो जाए. देन व्हाट वी गेट y प्लस z इज व्हाट 36 प्लस 41 माइनस 25. 6 प्लस 1 7 4 3 77 minus 25, that comes out to be 52. Therefore correct answer is C. Okay, now move to the next problem. The number of non-negative integral solution of the equation this and this. Okay,
तो ये इसमें आपको इस सिस्टम में दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है 6x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल्स टू 200 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 100 एंड यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन। x y z इंटीजर लेकिन नेगेटिव नहीं है ना। तो in order to eliminate one variable z, I am going to subtract these two equations. Then what we get 4x plus 3y is equals to 100. 4x plus 3y 100 आ गया। तो एक तरह से एक डायफेंटाइन इक्वेशन है। यहाँ से y का इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है, तो y को मैं ऐसे कुछ डिस्प्ले कर सकता हूँ 100 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3 है ना। तो x पर अब केसेस बनाइए सच दैट y इंटीजर आ जाए। तो x 0 से स्टार्ट होगा, 0 यहाँ पे वर्क करेगा नहीं, 100/3 इंटीजर नहीं आएगा, 1 भी आई थिंक वर्क नहीं करेगा क्योंकि 95/3 इंटीजर नहीं आएगा। तो x की वो पहली वैल्यू जिस पर y इंटीजर आएगा आई थिंक वो 2 है, x को 2 डालिए 90/3 करस्पॉन्डिंग y बच्चों कितना आ जाएगा 30। अच्छा अब अगर x इक्वल्स टू 2 पर y इंटीजर है तो डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो 3 इसमें 2 में ऐड करते जाइए तो डेफिनेटली 5 पर भी इंटीजर आएगा, 8 पर भी आएगा, 11 पर भी आएगा, 14 पर भी आएगा, ऐसे आता चला जाएगा। अब आप 1 बाई 1 चेक कर लीजिए, 105 पुट कीजिए 25, 100 माइनस 20 75, 75/3 इज 25, 5 के करस्पॉन्डिंग 25, 8 5 जा 40, 60/3 दैट इज 20, डिक्रीज करता जाएगा 11 5 जा 55, 100 माइनस 50 45 यानी 15 आ जाएगा। 15 है तो इस पर 14 5 जा 70, 30/3 दैट इज 10 और 17 ले लें, 17 5 85, 15/3 दैट इज 5 और एक और आई थिंक वैल्यू आ जाएगी x की 21 20 25 100 माइनस 100 0 तो उसके करस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगा। 20 के बियॉन्ड नहीं जा सकते, 20 के बियॉन्ड जाएंगे तो आपका y नेगेटिव आ जाएगा है ना। तो फाइनली 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज मिल रही मुझे x y की और इसके करस्पॉन्डिंग z और चेक करना पड़ेगा। तो z भी ऐसा ना हो कहीं पर नेगेटिव हो जाए, तो चेक कर लेते हैं। इन दोनों का सम 32 आ रहा है और 100 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आई थिंक 68 आ जाएगा है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई भी दो का सम 100 के बियॉन्ड तो जा ही नहीं रहा, तो हर केस में z की एक यूनिक वैल्यू जरूर आएगी। जैसे लास्ट वाले केस में भी आप निकाल लेंगे तो z 80 आ जाएगा है ना। तो हर x y के एक पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्ड z की एक यूनिक वैल्यू आ रही है एंड देयर आर 7 कॉम्बिनेशन, 7 ट्रिपलेट्स, फाइनली नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर n1 आपको एक नंबर थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। n1 है 2 पावर 55 प्लस 1, n2 है 165 और इन दो नंबर्स का आपको जीसीडी निकालना है ना। n1 क्या है 2 रेज़ टू द पावर 55 प्लस 1 और n2 है 165। जीसीडी निकालना तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आई थिंक ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 6 5 11 प्लस 1 12। ओके, तो 3 इंटू 3 5 सा 15 55, आई थिंक 3 इंटू 5 इंटू 11, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा है ना। अब यार ये चेक करना 3 5 और 11 में से कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो n1 का डिवाइजर हैं, जो n1 को डिवाइड करते हैं है ना। तो यहाँ पर मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ 3 और 11 का टुगेदर अगर मैं केस बनाऊं तो ये 33 बनता है और 33 को मैं यहाँ से ऐसे अपेयर करा सकता हूँ 2 रेज़ पावर 5 रेज़ टू द पावर 11 प्लस 1 and that can be written as 32 to the power 11 plus 1 to the power 11। और एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने पढ़ा था x plus y divides x to the power n plus y to the power n, x to the power n plus y to the power n for odd positive integer n। अगर n एक odd positive integer है then definitely x plus y जो होता है x पर n plus y पर n का डिवाइजर होता है। तो देयरफॉर पावर देखिए 11 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो डेफिनेटली 33 मस्ट डिवाइड n1। 33 n1 का डिवाइजर है और 33 n2 का भी डिवाइजर है। तो 33 तो हमें इसका कॉमन फैक्टर दिख ही रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलने के लिए मेरे को 5 को और चेक करना पड़ेगा क्या 5 n1 का डिवाइजर है या नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं। तो एक नंबर थ्योरी का छोटा सा कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। तो मॉडलो 5 पर देख लेते हैं। मॉडलो 5 पर अगर n1 0 के कॉन्ग्रेंट आ जाता तो फैक्टर बन जाएगा। 2 रेज़ पावर 4 16 होता है, इसको मॉडलो 5 पर निकाले तो आई थिंक ये 1 के कॉन्ग्रेंट है ना। 2 पावर 4 1 के कॉन्ग्रेंट है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 रेज़ पावर 55, 2 रेज़ पावर 55 को मैं लिखना चाहूंगा 2 रेज़ पावर 4 रेज़ पावर 13, 13 4 52 into 2 रेज़ पावर 3 and that is congruent to 2 रेज़ पावर 4 is congruent to 1
and 8, this one is 8 and 8 is congruent to 3 modulo 5. So overall we can write 2 raised to 55 plus 1 is congruent to 4 mod 5. तो ये अगर 4 mod 5 है, this implies that 5 does not divides n1. 5 n1 को divide नहीं करता, 5 n1 को divide नहीं करता, therefore GCD ऐसे both have the same meaning. GCD of n1 comma n2 is what? This is clearly 33. Therefore correct option is D. ठीक है ना। तो आप अगर इस नंबर थ्योरी वाले पार्ट को स्किप करना चाहते हो, आप एक तरीका और भी यूज कर सकते हैं। आप इस नंबर के लास्ट डिजिट चेक कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता होता है कि 2 की पावर, मेरे को ये चेक करना था ना n1 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो 2 की पावर में यूनिट डिजिट जो होती है 4 की साइकिल में रिपीट करती है ना। तो 2 पावर 4 की लास्ट डिजिट बच्चों क्या होती है? 6 होती है। इट मीन्स 2 पावर 4 k की भी लास्ट डिजिट 6 होगी। इट मीन्स k को 13 ले लीजिए, तो 2 की पावर 52 है ना, इंटू 2 की पावर 55 तक जाना था, इंटू 3, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 2 पावर 52 की 6 है, इंटू 8 दैट इज 6 8 जा 48 दैट इज 8 लास्ट डिजिट आ जाएगी। इट मीन्स 2 रेज़ पावर 55 प्लस 1, इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी? 9। अगर लास्ट डिजिट 9 है देन डेफिनेटली नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी, दिल्ली। ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पढ़ने में बड़ा डेंजरस सा लग रहा है लेकिन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। L एक पॉजिटिव रियल नंबर है, C डिनोट्स अ सर्कल विद सर्कमफ्रेंस L। C एक सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस L है, T एक ट्राइंगल है जिसकी पेरीमीटर L है। आई रिपीट, L एक पॉजिटिव रियल नंबर है और C एक सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस L है, T एक ट्राइंगल है जिसकी पेरीमीटर L है। और अब नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये रेशियो जो होगा ये फिक्स नंबर से बड़ा होगा, फिक्स नंबर से छोटा होगा, या फिर इंडिपेंडेंट होगा वो सी और टी पर, या फिर दो फिक्स नंबर के बीच लाई करेगा। ओके, चलिए स्टार्ट ले लेते हैं इसके सोल्यूशन को। सपोज क्या सर्कल की रेडियस r है, देन सर्कल की सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? दिस इज क्लियरली 2 pi r and here it is given to us as L, implies what is the radius of circle? L upon 2 pi, therefore area of C, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है यार? पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर, एंड दैट बिकम्स पाई, सॉरी पाई कैंसिल कर सकते हैं अपन इसको, तो एल अपॉन 4 पाई, एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, एरिया ऑफ सर्कल बिकम्स एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। एंड ऑल्सो व्हेन perimeter of triangle is given, we are familiar about this statement. Whenever the perimeter of triangle is given, then the area of triangle is maximum if the triangle is equilateral. So we can write it here, for also for a given perimeter the area of triangle is maximum if it is equilateral। यानी अगर पेरीमीटर में फिक्स कर दूं, मैंने कहा एक पेरीमीटर आपको 10 दे दिया और का ट्राइंगल बनाइए इसका एरिया मैक्सिमम हो, तो ऑब्वियसली उस केस में मैक्सिमम तब होगा जब ट्राइंगल कैसा हो? इक्विलेटरल हो, है ना। तो इस केस में अपन चेक करते हैं कि एरिया ऑफ टी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ टी। अच्छा, मैक्सिमम एरिया की बात करें तो दिस कैन नॉट गो बियॉन्ड, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला बच्चों क्या था? √3/4 साइड स्क्वायर, एंड साइड बिकम्स व्हाट, कि तीनों साइड सेम लेंथ की, l अपॉन 3 का होल स्क्वायर, देयरफॉर दिस बिकम्स l स्क्वायर अपॉन 3 4 12 √3। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस नंबर, दिस विल इंप्लाइज एरिया ऑफ C अपॉन एरिया ऑफ T। तो अगर हम डिनोमिनेटर को, मैं देखिए न्यूमरेटर का तो एरिया कांस्टेंट है, अगर पेरीमीटर गिवन तो एरिया फिक्स रहेगा, है ना। लेकिन ट्राइंगल में अगर पेरीमीटर गिवन है तो हम इनफाइनाइट ट्राइंगल्स वहां से बना सकते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया वेरी करेगा, है ना, वेरी करेगा। और हम नीचे डिनोमिनेटर को अगर मैक्सिमाइज करते हैं तो फ्रैक्शन मिनिमाइज हो जाएगी, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, न्यूमरेटर में आएगा एरिया ऑफ सर्कल, नीचे आएगा एल स्क्वायर अपॉन 12 √3, तो एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 12 √3 अपॉन 4 पाई, दैट कम्स आउट टू बी 3 √3 अपॉन पाई, एंड दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, यानी एरिया 1 से हमेशा
बड़ा आएगा तो ऑब्वियसली ये आपका जो ऑप्शन है दैट इज व्हाट, आगरा। एरिया फिक्स नंबर से हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है ना। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू प्रूव दिस लाइन। सपोज हो सकता है आप लोग इस रिजल्ट से अगर फैमिलियर ना हो, आप जानना चाहते हो ये सर ने डायरेक्टली ऐसा कैसे बोल दिया, तो हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, ए एम जी एम इनइक्वालिटी में यूज करने जा रहा हूं। कंसीडर नंबर्स s minus a, s minus b, s minus c and use am greater than equal to gm। तो इन तीन नंबर्स का am s minus a plus s minus b plus s minus c upon 3, इन तीन नंबर्स का gm s minus a, s minus b, s minus c raised to the power 1 by 3, 3s minus 2s that is s by 3, s by 3 whole cube greater than equal to s minus a, s minus b, s minus c। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करनी थी तो एक s से मल्टीप्लाई कर दिया, s s minus a, s minus b, s minus c। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली लेस और इक्वल्स टू s पावर 4 आ जाएगा। तो s पावर 4 दैट इज s स्क्वायर अपॉन 3 रूट 3, ठीक है ना। बट s इज एक्चुअली व्हाट, s इज सेमी पेरीमीटर, तो s को मैं लिख सकता हूं बच्चों l/2, तो l स्क्वायर अपॉन 12 रूट 3, तो ये एरिया मैक्सिमम आ गया। मतलब दिस एरिया कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस नंबर, दिस इज एक्चुअली द अपर बाउंड ऑफ द एरिया। और इक्वालिटी कब आएगी, इक्वालिटी एग्जिस्ट, जैसा कि मैंने वहां पे डिस्कस किया था। आप जानते हैं इक्वालिटी एमजीएम में तब आती है जब सारे नंबर सेम हो जाए, s minus a equals to s minus b equals to s minus c, that will again implies a equals to b equals to c and the triangle must be equilateral। अगर इक्विलेटरल है तो एरिया मैक्सिमम आएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। The number of three-digit number ABC is such that the arithmetic mean of B and C and the square of their geometric mean are equal, है ना। आपको थ्री डिजिट नंबर ABC बताने हैं, कितने बना सकते हैं अंडर द कंस्ट्रेंट अरिथमेटिक मीन ऑफ B and C दैट इज B plus C by 2 एंड द स्क्वायर ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज रूट BC, स्क्वायर करने का मतलब रूट हट जाएगा, तो B plus C minus 2BC। यार इसको सॉल्व करना है, और B और C ऑब्वियसली क्या डिजिट्स हैं, तो B और C के सेट से लेना 0 1 2 से लेकर 9, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक तरह से यार ये एक डायफिनटाइन इक्वेशन है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करें, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 2b प्लस 2c माइनस 2bc, है ना। अगर मैं 2b इन दोनों से कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, 1 माइनस 2c, 1 माइनस 2c माइनस 1 माइनस 1। एक ट्रिक लगा दी बच्चों जिसे फैक्टर हो जाए। फर्स्ट और थर्ड कंपोनेंट से 2b कॉमन ले लिया तो मेरे को 1 माइनस 2c दिख रहा है। सेकंड और फोर्थ से माइनस 1 कॉमन लिया, तो आई थिंक आप सभी इससे यूज टू होंगे ही होंगे कैसे फैक्टराइज करते हैं। हाँ, तो इसको मैं लिख सकता 2b माइनस 1 इंटू 2c माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1, दो केस में होगा, या तो दोनों प्लस 1 हो या फिर दोनों माइनस 1 हो। तो दिस इक्वल्स टू 1 एंड दिस इक्वल्स टू 1, और दूसरी पॉसिबिलिटी 2b माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 2c माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। फर्स्ट केस में देखो यार, a b और c दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। सेकेंड केस में देखिए 1 1 कैंसिल, b और c दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। तो b और c पर देखिए दो पॉसिबिलिटी, या तो दोनों 1 होंगे या फिर दोनों 0 होंगे। लेकिन आप देखिए पूरी कंडीशन में a पर कोई भी केस नहीं, a पर कोई कमेंट्री, कोई कमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर a पर बच्चों a क्या है, 100 प्लेस वाली डिजिट है, तो ऑब्वियसली a नॉन जीरो डिजिट होगी, तो a कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1 2 3 अप टू 9, पहले केस में भी एंड सेकेंड केस में भी a पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 9 केसेस पहले से, 9 नंबर पहले केस से बन जाएंगे, 9 नंबर सेकंड केस से बन जाएंगे। ओवरऑल कितने नंबर आएंगे, 18, ठीक है ना। सिंपल सी प्रॉब्लम थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट ABCD, क्वेश्चन नंबर 61 है ये। लेट ABCD be distinct real numbers such that A and B are the roots of this quadratic and C and D are roots of this quadratic, then B plus D equals to, B plus D पूछ रहे हैं। तो बच्चों ये बहुत ही पुरानी एक IIT जे एडवांस में आई हुई प्रॉब्लम है, बिल्कुल वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने, उसी जैसी एक प्रॉब्लम फ्रेम कर दी है। तो चलते हैं, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, उसके रूट a और b हैं, तो यहाँ से मैंने सम ऑफ रूट निकाल लिया, a प्लस बी इज व्हाट 5c,
और सेकंड क्वाड्रेटिक के रूट क्या है, सी और डी, वहां से भी मैंने सम ऑफ रूट निकाल लिया, सी प्लस डी क्या आ जाएगा 5a, है ना। अपने को ये सम बताना है यार, b प्लस डी। तो पहले तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, व्हाट वी गेट a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल्स टू 5 टाइम्स a प्लस c, ये पिक्चर आ गई। अच्छा, a और c को अगर मैं राइट में शिफ्ट कर दूं तो b प्लस d मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स, कि मेरे को b प्लस डी निकालना है तो केवल b प्लस डी की ही बात करेंगे हम। b प्लस डी आ गया 4 टाइम्स a प्लस c, यानी अगर b प्लस डी निकालना चाहते तो कैसे भी करके a प्लस c को पिक्चर में लाओ, a प्लस c की वैल्यू निकालो। अब a प्लस सी कैसे निकाल सकते, देखिए a इज द रूट ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेटिक, तो a अगर फर्स्ट क्वाड्रेटिक का रूट है तो ऑब्वियसली रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करा दिया। a स्क्वायर माइनस 5ac माइनस 6d इक्वल्स टू 0 एंड c इज द रूट ऑफ द सेकंड क्वाड्रेटिक, तो c इसको सेटिस्फाई करा दिया। c स्क्वायर माइनस 5ac माइनस 6b इक्वल्स टू 0, है ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको तो फैक्टर हो जाएंगे, ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल, तो a माइनस सी टाइम्स a प्लस सी प्लस 6 टाइम्स b माइनस डी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यार गेम को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि b माइनस डी भी पिक्चर में आ गया, तो पहले इस पर वर्क करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, a में से c को और b में से d को, देन व्हाट वी विल गेट इन राइट हैंड साइड में मिलने वाला है मेरे को 5 टाइम्स c माइनस a, है ना। तो b माइनस डी, a माइनस c को राइट में ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो 5 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 6 टाइम्स c माइनस a, ऐसा कुछ देख पा रहा हूं मैं यहाँ पर। इसको यूज कर लेते हैं, a माइनस सी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू माइनस 6 टाइम्स b माइनस डी, और b माइनस डी की वैल्यू 6 या 36 इंटू ए माइनस सी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लाइन देखिए, ए बी सी डी सारे डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो नो डाउट मैं a माइनस सी को a माइनस सी 100% कैंसिल कर दूंगा। देन व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर, a प्लस सी इज व्हाट, a प्लस सी मेरे को बहुत ही मीनिंगफुल रिजल्ट मिल गया 36, और इमीडिएटली इसको उठा के ये जो स्टार इक्वेशन मेन इक्वेशन है यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा ट्रिकी तो है, क्योंकि एक सीक्वेंस है, उसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे तो जल्दी सोल्यूशन आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, टाइम आपका यूज हो जाएगा। 36 टू 72 टू जा 144, b प्लस टी 144। आप लोग जो एडवांस देखिएगा, देखिए एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम वहां पर आई हुई है, तो उसी का कॉपी पेस्ट मारा है। नेक्स्ट, let s equals to 1 2 3 up to 100, suppose b and c are chosen at random from the set s, the probability that this quadratic equation has equal root। तो बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप की प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी को पता है सभी को पता है कि इक्वल रूट होने की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 16c इक्वल्स टू 0, दैट इज b स्क्वायर इक्वल्स टू 16c, 16 यानी 4 स्क्वायर इंटू c, है ना। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों देखिए क्या परफेक्ट स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो c को मुझे कुछ इस तरह से डिजाइन करना है जिससे ये वाली पूरी क्वांटिटी क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c, तो c हमें वो नंबर यहां से उठाने 1 से 100 तक जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑब्वियसली 1 4 9 16 अप टू 81 और 100। तो बच्चों ये कितने नंबर्स आएंगे, 10 नंबर्स आएंगे, है ना। और हम चेक भी कर सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू, जैसे हमने 100 उठा के यहाँ पर पुट किया, 100 पुट कर दिया, 100 के करस्पॉन्डिंग b स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो b आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये नहीं है कि हमने यहाँ कोई पुट किया b इस सेट से बाहर नहीं जाएगा, b आएगा इसी सेट के अंदर। आप c की कोई वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग b इसी सेट के अंदर आएगा, तो सारी की सारी वैल्यू वर्क कर रही है ना। तो ओवरऑल c की कितनी वैल्यूज आ रही हैं जो क्वेश्चन में वर्क करती हैं, 10 वैल्यूज फेवरेबल है ना। और 10 के करस्पॉन्डिंग b पर भी 10 ही केस बनेंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो b और c के पेयर को सिलेक्ट करने के 10 मैनर्स है अपने पास, है ना, क्योंकि c सिलेक्ट होगा तो b यूनिक आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए टोटल केसेस में b को सिलेक्ट करने के कितने मैनर आ गए, 100, और जब b सिलेक्ट हो गया तो c को सिलेक्ट करने के 99 मैनर नहीं होंगे बच्चों, ये सेट है, सेट में एक एलिमेंट को आप कितनी भी बार लिख सकते हैं, तो c को भी सिलेक्ट करने के 100 ही मैनर होंगे। यहाँ मिस्टेक मत कर देना, 0 से 0 कैंसिल,
1/1000 मतलब 10⁻³ तो प्रोबेबिलिटी है कि 10⁻³ और डेसिमल फॉर्म में लिखना तो 0.001। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, लेट n बी द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, लेट fn एक सीक्वेंस डिफाइन कर दिया, n+1 का क्यूब रूट माइनस n का क्यूब रूट, एंड एक सेट कैपिटल A डिफाइन किया, A इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स n व्हिच इज सैटिस्फाइंग दिस डबल इनइक्वालिटी। मतलब fn+1 और fn के बीच इस क्वांटिटी को सैंडविच बनाया गया। मतलब हमको एक तरह से इस डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करके n निकालना है, और जो n आएंगे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से वही A सेट के मेंबर होंगे। अब आपसे ये पूछा गया कि ए सेट में कौन कौन से मेंबर, ए फाइनाइट सेट है, ए इनफाइनाइट सेट है, ए पूरा पूरा नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार क्वेश्चन को हम स्टार्ट यहीं से लेंगे, fn एक्चुअली क्या दिया हुआ है। तो fn में जो दिया हुआ है हम इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यूज करके इस न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना चाहते हैं। एंड आई थिंक आप फैमिलियर होंगे कि AQ माइनस BQ का जो फॉर्मूला होता है उसी से इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है A माइनस बी इन ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो इससे मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, n+1 की पावर 2/3 प्लस n की पावर 2/3 n की पावर 1/3 n+1 की पावर 1/3। ऊपर फॉर्मूला बन गया AQ माइनस BQ, तो ऊपर आ जाएगा n+1 माइनस n, और नीचे वाली पिक्चर एज इट इज कॉपी को जाइए तो n से n कैंसिल। फाइनली जो fn का लुक मेरे पास आ रहा है दैट इज समथिंग लाइक दैट 1 अपॉन, अब केवल मैं एज इट इज नहीं लिखना चाहता, वही पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, प्लस n की पावर 1/3 n+1 की पावर 1/3 है। ये कुछ इस तरह का आ गया fn, है ना बच्चों। अब यार थोड़ा सा केयरफुल रहिए। देखिए fn का डिनोमिनेटर अगर मैं देखो तो मुझे केवल दो टाइप के टर्म दिख रहे हैं, n की पावर एक बार n दिख रहा है और एक बार n+1 n और एक बार n+1। अब मैं fn के बाउंड्स निकालना चाहता हूं। fn का अगर मुझे अपर बाउंड चाहिए तो फ्रैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दो, यानी हर टर्म की जगह n पुट कर, n+1 को n से रिप्लेस कर दो। n+1 को अगर आप n से रिप्लेस करोगे तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो n+1 को n से रिप्लेस किया, n/2/3 n/2/3 3 टाइम्स डेफिनेटली यार इसका अपर बाउंड होगा। थोड़ा सा केयरफुल होकर देखें आप लोग, ठीक है ना। अब मैं यार fn का अपर बाउंड निकालना चाहता हूं, सॉरी लोअर बाउंड निकालना चाहता हूं। लोअर बाउंड मतलब मिनिमाइज करना चाहता हूं fn को। तो किसी फ्रैक्शन को मिनिमाइज करना हो तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दीजिए आप, तो n को n+1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो जब आप n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिल जाएगा, लोअर बाउंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने यहां से कलेक्ट किया है। दिस रिलेशन को मैंने स्टार ना बोलकर 1 बोल दिया, है ना, इसको मैंने 1 बोल दिया है। अच्छा fn आ गया पिक्चर में, और यहां पर मैं देख रहा हूं ये जो उन्होंने सेट डिफाइन किया इसमें fn+1 दोनों का यूज किया है। तो अगर fn ऐसा है तो fn+1 n को n+1 से रिप्लेस कर दो, fn+1 आ जाएगा 3 × n+1, इसका अपर बाउंड ये आ गया और इसका लोअर बाउंड हो जाएगा ये सेकेंड इनइक्वालिटी आ गई, ये दो डबल इनइक्वालिटी आ गई, और दोनों ही n की हर वैल्यू के लिए ट्रू, ये भी n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है ना। तो अब हम इस इनइक्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं। ये क्या लिख कर दिया हुआ है, fn+1 लेस देन दिस। तो देखो इसका राइट पार्ट तो मुझे यहां से दिख रहा है, इसका राइट पार्ट ये दिख रहा है ना, तो यहां से तो ये हर n के लिए ट्रू है, और इसका लेफ्ट पार्ट देखिए, ठीक है ना। तो fn+1 फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है बहुत ही एलिमेंट्री, वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी एलिमेंट्री प्रॉब्लम। तो सेकेंड इनइक्वालिटी के राइट साइड से देखिएगा, सेकेंड इनइक्वालिटी के राइट साइड से देखा 3 × n+1 की पावर 2/3। fn+1 के लिए ये नंबर अपर बाउंड है, और इस नंबर का अपर बाउंड क्या है, fn है। फ्रॉम फर्स्ट इनइक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड पर जो फॉलो कर रहे हैं क्या, तो इन दोनों इनइक्वालिटी के कॉम्बिनेशन से हमने इस रिजल्ट को निकाल लिया। एंड ऑब्वियसली ये n की, क्योंकि पहला भी वाला भी n की हर वैल्यू पर ट्रू है, दूसरा भी n की हर वैल्यू पर ट्रू है,
तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी रिजल्ट आएगा, जो कॉमन पिक्चर आएगी वो भी n की हर वैल्यू पे ट्रू होगी। और इसको जो सेटिस्फाई करने वाले n है वही आपका कैपिटल सेट A सेट है, तो ऑब्वियसली A और n दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है ये n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 64th प्रॉब्लम देखिए, प्राइम नंबर p is called special if there exists primes p1 p2 p3 p4 such that p क्या हो, दो प्राइम नंबर के सम के इक्वल हो और दो प्राइम नंबर के डिफरेंस के इक्वल हो। तो हम ऐसे प्राइम को क्या बोलते हैं, स्पेशल प्राइम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा कि कितने स्पेशल प्राइम्स एग्जिस्ट करेंगे। चलिए, तो पहले ये जो डेफिनेशन दी है पहले इसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, क्या लिख कर दिया है। p इक्वल टू p1 प्लस p2 और एक बार बोला p3 माइनस p4। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा यहां से हैंडल करो। दो प्राइम नंबर का सम अगर प्राइम है तो ऑब्वियस सी बात है यार, दो प्राइम नंबर का सम अगर प्राइम है तो दोनों प्राइम ऑड नहीं हो सकते। अगर दोनों ऑड होते तो उनका सम इवन आता, और इवन नंबर, इवन तो एक ही प्राइम होता है, दैट इज 2, ठीक है ना। तो एक बात क्लियर होगी कि दोनों एक साथ ऑड नहीं हो सकते, इनमें से एक इवन प्राइम होगा, और इवन प्राइम तो ऑब्वियसली यार एक ही होता, तो इन दोनों में से किसी एक को तो 2 होना पड़ेगा। और सेम आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पर भी रिपीट कर दूंगा, दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर प्राइम है तो ऑब्वियस सी बात है उनमें से एक इवन होगा एक ऑड होगा, दोनों ऑड नहीं हो सकते, दोनों ऑड का डिफरेंस इवन होता है। और ये बात बच्चों समझ में, तो इनमें से भी एक को 2 होना पड़ेगा। बात कर रहे हैं कि पहले केस में p1 p2 में से कोई भी 2 ले सकते हैं, लेकिन सेकंड केस में p3 को 2 नहीं ले सकते, ये 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 है तो फिर 2 माइनस 2 तो पहले ही प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन में मतलब ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया, जो ऑब्जर्वेशन लिया, यहां से मैं इतना लिख सकता हूं नेक्स्ट लाइन में 2 इक्वल टू p प्लस p2 और नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू p3 माइनस 2। आई थिंक आपकी बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो अब अगर इसको इससे कनेक्ट करें तो p2 की वैल्यू क्या आ गई, p2 आ गया p माइनस 2, और इसको इससे कनेक्ट करें तो p3 आ गया p प्लस 2, है ना। तो फाइनली प्राइम्स जो मेरे को देख रहा है p माइनस 2, p और p प्लस 2, ये क्या है, आर ऑल प्राइम्स, ये तीनों प्राइम है ना। और ऑब्वियसली ये तीनों कैसे नंबर होंगे, ऑड नंबर है। अच्छा, ये तीन ऑड प्राइम है, तो तीन ऑड कंसेक्यूटिव प्राइम है, तीन ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली इनमें से एक नंबर तो 3 से डिविजिबल हो ही सही, है ना। तो अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली वो 3 से, और ये प्राइम भी है तो डिविजिबल होने का मतलब इसको 3 ही होना पड़ेगा, है ना। तो ये 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 हुआ तो p माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 है तो ऑब्वियसली ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो p माइनस 2 3 होने मतलब p की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो केवल और केवल एक ही केस ऐसा आएगा, एक ही स्पेशल प्राइम हो सकता है, दैट स्पेशल प्राइम इज 5, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज बॉम्बे। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लेट ABC a triangle in which AB equal to BC, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की जा रही है। लेट X be a point on AB such that AX is to XB equals to AB is to AX. If AC equals to A, then measure of angle ABC equal. आई थिंक हाँ यार, ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी पेपर की, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। 2-3 प्रॉब्लम अच्छी आई, तो उनमें से एक ये भी प्रॉब्लम थी। एक नंबर थ्योरी पे बहुत अच्छी प्रॉब्लम आई थी, 7th प्रॉब्लम, और एक 65। ये दो प्रॉब्लम बेस्ट प्रॉब्लम थी पेपर की, तो उन दो प्रॉब्लम को आप स्पेसिफिक देखेंगे। बाकी सारी तो ऐसी हैं जो प्रॉब्लम्स हैं जो डेली हम लोग सॉल्व करते हैं। ABC एक ट्रायंगल है, AB इक्वल्स टू BC, इट मींस ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की जा रही है। लेट X be a point on AB such that AX upon XB, AX upon XB equals to AB upon AX. ओके, एक बात समझ में आ गई, इट मींस AX स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन GP की कुछ बात की जा रही है, AB इंटू XB, नॉट ए बिग डील। तो कहीं पर भी ले लो, X मैंने यहाँ कहीं पर ले लिया है ना, क्योंकि ये X यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि AC और AX इक्वल लेंथ के हैं, तो यहाँ कहीं के आसपास ही होगा। और AX क्या है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। AX इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB एंड XB। तो XB को मैंने A लेट कर लिया क्योंकि सबसे छोटी साइड है, और AX को क्या लेट कर लिया, AR, AX इज AR। तो ये साइड कितनी आ जाएगी, पूरा AB, दैट बिकम्स AR स्क्वायर, AR स्क्वायर, ऐसा कुछ लेट कर लिया। अच्छा, AX की AB की लेंथ और BC की लेंथ इक्वल है, तो ये भी AR स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाला इंफॉर्मेशन देखिए, AC और AX बराबर है, तो ये AR आ गया,
ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यार आर निकाल लेते हैं। आर कैसे निकालेंगे, सिंस वी कैन राइट ए बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एक्स बी। तो ए बी अपने पास क्या है, ए आर स्क्वायर, ए एक्स क्या है, ए आर प्लस ए कैंसिल आउट कर दें, तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आर इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, जब माइनस में हटा दूंगा क्योंकि आर निगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि रूट 5 यहाँ बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो आर की ये वैल्यू आ रही है रूट 5 प्लस 1/2, जिसको हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं। आर इक्वल टू रूट 5 प्लस 1/2। चलिए अब मेरे को एंगल निकालना था ए बी सी, ये वाले एंगल की बात कर रहे थे। इस एंगल को मैंने थीटा लेट कर लिया, and I am going to use cosine rule in triangle ABC. Then cos theta is what? AB square. AB square means A square R power 4 plus BC square means again A square R power 4 minus AC square means A square R square upon 2 times AB यानी AR square into BC again AR square. तो A square तो मैंने ऊपर और नीचे से कैंसिल कर दिया, 2R power 4 minus R square अपॉन 2r पावर 4, आर स्क्वायर 2r पावर 4 से डिवाइड ही दे देते हैं, 1 माइनस 1 बाई 2r स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर क्या आएगा, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 आएगा, 4 को 2 यहाँ लिख देते हैं, 2r स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 2r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 5, तो 1 अपॉन 1 माइनस 3 प्लस रूट 5, तो 3 माइनस रूट 5 एलसीएम ले लेते हैं, 3 प्लस रूट 5 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, 2 3 जा 6 माइनस 5 मीन्स 1 प्लस रूट 5, 3 3 जा 9 माइनस 5 दैट इज 4। तो cos थीटा इतना आ रहा है, और इस एंगल से हम लोग फैमिली है, रूट 5 प्लस 1/4 ये वैल्यू होती है cos 36 डिग्री की। तो थीटा एक नोन, थीटा का एंगल आ गया अपने पास 36 डिग्री। तो ओवरऑल एक ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ठीक प्रॉब्लम थी, अच्छी प्रॉब्लम थी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।